बैठा उसको सीधा कर दें तो तकरीबन 4000 एकड़ 4 एकड़ सुनने में दिक्कत हुई मैं समझ गया ना हिंदी पंजाबी मिक्स हो गई तो सर वो जो 7 किलोमीटर का बांध है ये सरकार ने एक बार इसको मंजूर किया था और काम चल रहा था और यहाँ शेरपुर गांव पड़ता है एक वहाँ तक बांध बांधा गया और उसके बाद किसी वजह से खत्म हो गया काम उसको बोलते हैं कैरो सर्वे बांध भी ने 2-3 नाल ही बिल्ली वो भी जरूर देखो जी उन्होंने जरूर हल करो वो तो बिल्कुल ही नाल आ गया इंजन जो उन्होंने सारा जो कुछ राहत सामग्री बटी है आप लोगों के लिए अभी आई माड़ा मोटा मिली पूरा नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल क्या मिला बस भी खंड पत्ती लाल थोड़ा थोड़ा चारा लाल चीनी और पत्ती चाहिए हाँ सौदा दाल चावल चीनी आदि आदि दूसरा क्या नाम ये पशुओं का चारा बड़ा मोटा जी इतना बाला ज्यादा नहीं तो नोचों का ज्यादा हो जाए ना जी स्टार्ट वगैरह जो टोटी गया तो चारा क्या करेंगे सारा रुक जाना इधर 6000 किला रकबा जो नहीं परला चो ज्यादा नहीं परला चो ना उल्ला हां ऊंचे चो नहीं कुछ कर नहीं हो गए वाला पॉलिसी बनी सरकार की पॉलिसी 5 किले तो ਵੱਧ नहीं ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਹੈ ਸਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ 17.5 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ पर जो पंजाब सरकार ने पॉलिसी बना दी 5 एकड़ तो ਵੱਧ मुआवजा नहीं मिलेगा जे भारत सरकार की पॉलिसी है भी 17.5 एकड़ तक ना साडे जमीन रह सकती तो मुआवजा सानू 17.5 एकड़ तक मिलना चाहिए नंबर 2 तो पंजाब सरकार की जिवें 40,000 मकान ठेके का देना भारत सरकार की पॉलिसी भी 1,60,000 देना जो प्रधानमंत्री योजना तहत पिंडा है जी 1,20,000 ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੋਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ 650 ਕਿਲਾ ਰਕਬਾ ਸਰੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ 750 प्लीज आपकी नोटबुक आ रही है इधर इस बार दरिया के पानी ने करो आप बहुत तबाही लाई दरिया आपकी ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ 12-13 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿੱਗੀ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਡਿੱਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ 73,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਭ ਸਾਡੀ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਰੂ ਸਰਵਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 4,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਚਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਵੀ ਲਾਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਧਾਨ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। सर बैंक की किस्तें आ गई, बच्चों की फीस भी आ गई, तो वो ये चाहते हैं कि कुछ डिले हो जाए, कुछ बैंक से माफ हो जाए, कुछ आगे हो ਤੁਸੀਂ ਕੰਢੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ? सर एक जो ये नदी है इसमें कोई नहरी रूप बनाकर पक्के तौर पे रखा जाए। जो जब बाढ़ आता है ये आगे पीछे जाता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जो सारियाँ ज़मीनें हैं ये हमारे मालकी ज़मीनें हैं। ये यहाँ पर कोई नदी नहीं है, यहाँ कोई नक्शे में नदी नहीं आता है। ये नदी यहाँ पर इसको बनाया गया है, इसका कोई प्रॉपर ध्यान दिया जाए, इसको ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੇ ਜੀ 1955 ਚ ਉੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾੜ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਔਨ ਪੇਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ अलॉटमेंट लेटर पे ने ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਨਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਬੰਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਨਦੀ ਬਣ ਗਈ। सर इसका समाधान तो वही है जो आपने बताया अभी। ਹਾਂ ਮਰਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਸਰ खेतों में नदी आ गई है। ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ नदी में नदी की जमीन आप छोड़ दीजिए। नहीं जी नहीं। इनकी जमीन में नदी दरिया का जो फैलाव हुआ ऊपर से भागड़ा नागल नीचे से वाटर रिजर्व किया गया। इस बार ज़्यादा वर्षा हुई है, नदी उछली है, गहरी नहीं है। गहरी होती 20 फुट हमारे तो पानी रन ऑफ हो जाएगा। अब पानी रन ऑफ नहीं हुआ, पानी फैल गया। और ये नहीं होता तो क्या 10 किलोमीटर और नहीं खराब होती। अभी बांध के इधर खराब है, इधर तो फर्स्ट क्लास फसल है। ये जिसने भी बनाया, अगर नहीं बनाया यार ਵੀਰੇ ਲੋਗੋ ਮੜਾ किलोमीटर और जाता ਆ ਲੋਗੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਕਰੇ। सर इसको वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਗੋ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾ। जीरो ਲੋਗੋ ਥੋੜਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾਂ। नहीं पहुंच सकते। इसमें बहुत राज्यों में बाढ़ है। रिकॉर्ड कर दो। पूरे मंत्रिपरिषद नहीं लोगो ना। अच्छा वो बड़ा मंत्री हो या छोटा मंत्री, ऑनरेबल गृह मंत्री जी कश्मीर पुरी साहब भी कहीं गए, आज गुरदासपुर में कुछ साहब गए यहाँ पर। तो सब लोगों को जहाँ भी बाढ़ पीड़ित है कोई हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं करेगा और बल्कि ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, किसानों से, बाढ़ पीड़ितों से, शहर के नागरिकों से बात करेंगे और वो सब लिख के लाए के प्रधानमंत्री राष्ट्र को देंगे। जो राज्य सरकार के काम है उनको रिकमेंड करेंगे। कल एक मीटिंग बुलाएंगे राज्य सरकार की, क्या क्या हमें प्रपोजल मिले। आपने मैं ये पूरा पंजाबी में पहले से मुझे दिया, सुनने में समझ में आता है, पढ़ना नहीं जाता। तो उसको में ट्रांसलेट करने की गए वही भाई यहाँ के डीसी से इरीगेशन डिपार्टमेंट के जो वेटनरी डिपार्टमेंट गाँव से मैं 3 बार मिला, वहाँ पूरे 140 16 लाख में 140 से कम क्या और उसमें मैं थाली नहीं है तो साहब आ जाओ आप, पानी डालो।
हेलो जी, रविंदर जी एक बारी दे सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप काफी जी काम की इधर सब बड़ी बड़ी स्टडी। हाँ जी, हाँ जी। और इधर ये जो हमारा एरिया ना जी, ये जब भी आई है, जब भी बाढ़ आई है, एवरी टाइम ये यहाँ पर इतना ये नुकसान हुआ है। और आपको जैसे आप आए हो सभी गाँव से, आपको बता ही दिया होगा जो जो यहाँ पर की जरूरतें हैं, कैरोल सर्वे बन होगी तो वही समाधान है जी। अगर वो बन जाता तो ये सारा एरिया बच सकता। और आप कृपा करें, कल आप मीटिंग में आओ, वो जो वाली मीटिंग है 3 बजे रखेंगे। मैं अपन पास कराते जी, जिला योजना से या मनरेगा से जी। मुझे जो बताया है कि लगभग 7 किलोमीटर बांध बनना है, यू शेप में है, उसका एक पोर्शन खाली है, वो बन गए तो फिर निकलेगा। अच्छा, ये बांध मैं सोच रहा था बैराज नहीं, ये स्वयं चल के आ रहा है, नहीं ये इसको बंधा कहते हैं, मिट्टी का है, ऊंचाई पर है और वाहन चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 7 किलोमीटर 20 करोड़ से ऊपर का नहीं, ज्यादा नहीं है सर, है ना? इतना 7 किलोमीटर बन जाएगा मेरे को पंजाबी हमारा एरिया। 20 करोड़ रुपए खर्च करो तो हमारे मुआवजा में देने वाला 100 करोड़ बचाओ। बिल्कुल सही बात है। खर्च करो और जनहानि, धनहानि, पशुहानि, बीमारी से बचाओ। पैसा तो देना ही पड़ेगा, इधर लगा दोगे तो इधर मुआवजा नहीं देना। पिछली बार 5 करोड़ रुपया बांटा मुआवजा इसी इलाके में। और हमारे जो 3 गांव हैं, 3 गांव तो बाहर शिफ्ट करने वाले हैं ना, जमीन भी देने को तैयार है बाहर वाले। 1-2 गांव के तो पास नहीं है, गाँव के पास तो है जमीन। परमानेंट सोल्यूशन तो पैरों बांध है, परमानेंट सोल्यूशन वही है हमारे पास। और जब वो अभी तमाम समस्याएं हैं, जैसे बीमारी, पशु, पाउडर, खाना, दवाई, बिजली, और वो हो जाएगा तो बच जाएगा। तो वही हाल होगा जो इधर पोस्ता ही कहते हैं इसको बांध। उसके राइट हैंड साइड गजब की फसल 5 मीटर दूर लैब पूरी बह गई। और जो जमीन है ना, वो भी सभी की अलॉटमेंट ही है यार। दिशा की बैठक होती है यहाँ पे, रजिस्ट्री है। हाँ जी, दिशा वाली बैठक होती है। दिशा वाली मतलब दिशा इन सरकार की योजनाओं को लेकर के MP उसका चेयरमैन होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो लेवल पे प्रस्ताव पास हो सकता है और तो बैठ के बात करते हैं। मुझे तो उसका समाधान ये लग रहा है कि मनरेगा के मेरा अपना मनरेगा के कन्वर्जन से मैंने ये जो डिमांड है मैंने लिखी है, सारे खेत फोटो ही ठीक है जी। पहली बार बिना पंजाबी के मिला था नहीं बैठना क्या यार। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पंजाब की बाढ़ पीड़ितों दौरा करके उनसे बात की और एक बड़ा पैकेज 12,000 करोड़ का और एक 1,600 करोड़ का, इस प्रकार से 13,600 करोड़ के पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाढ़ पीड़ित इलाका ज़्यादा है, प्रधानमंत्री 0 पॉइंट पर हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी मंत्रियों को, चाहे वो सीनियर कैबिनेट मंत्री हों या राज्य मंत्री हों, उनसे कहा गया है कि बाढ़ पीड़ित देश में जो जो इलाके हैं वहाँ मंत्री स्वयं जाएंगे और हवाई दौरा नहीं करेंगे।
ग्राउंड जीरो पर जा कर के जनता से मिलेंगे और जनता की परेशानियां, दुश्वारियों से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे, उनकी मीटिंग लेंगे और पब्लिक से पूछेंगे उनकी क्या परेशानियां हैं। तो मुझे बताते हुए ये गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के प्रति और बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, सरकार हो या ना हो, एनडीए गठबंधन हो या एनडीए हो या कोई तीसरा हो, वो समान व्यवहार करते हुए उन्होंने तमाम राहत सामग्री और पैकेज की बात की है। भारतीय जनता पार्टी शासित जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ मैं देख रहा था कि गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार के खाते में 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं और उत्तर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 50 ट्रक के आसपास राहत सामग्री दैनिक उपयोग की चीज़ें भी भेजी हैं। मुझे लगता है इस गांव में डॉक्टर मलिक हैं जो हरियाणा के संगठन के हैं, वो भी कुछ सामग्री लेकर के आए थे और यहाँ जो लंगर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक लोगों के घरों में चूल्हे जलने प्रारंभ नहीं हो जाएंगे। एक स्थायी समाधान स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि एक यू शेप के एक बांध की आवश्यकता है जो लगभग 5 किलोमीटर, अगर वो बांध बन जाएगा तो 4000 एकड़ ज़मीन में पानी नहीं भरेगा। तो 4000 एकड़ में लगभग 200-250 करोड़ की क्रॉप हो सकती है और अगर 10-20 करोड़ से हम स्थायी समाधान निकाल सकें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हर साल मुआवजा देने की जगह मुआवजा ना देना पड़े बल्कि वो पैसे से निर्माण कार्य हो जाए जिससे बाढ़ की विभीषिका से ये गांव बच सकें। मुझे बताया गया कि प्रताप सिंह कैरों हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पंजाब, उनके द्वारा किया गया था, फिर उनका असैसिनेशन हो गया था तो वो योजना रुक गई थी। लेकिन मोदी सरकार जानी जाते हो कि अपने बांधों के लिए, सड़कों के लिए, रेल मार्ग के लिए, सबके लिए जानी जाती है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है। तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे करीब 15-16 एप्लीकेशन मिली हैं, सभी पंजाबी में हैं। तो मौखिक रूप से तो मुझे समझ में आ गया, तो इन सबका तर्जुमा करा करके संबंधित विभागों को हम भेजेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी जो यहाँ जनता की डिमांड है उसको भेजेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें 1,20,000 रुपये की निधियाँ दी जाती हैं और शहर में 3 लाख से 3,60,000 के करीब आती है। तो ये दिया जाता है भवनहीन लोगों को या उनके भवन कच्चे हों। ये जो मकान हैं जमींदोज हो गए हैं तो वो भवनहीन तो हो गए हैं। बाकी कुछ नियमों में उसमें ये भी है कि कार नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, जीएसटी पे ही नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। तो राज्य सरकार जो भी रिकमेंड करेगी और ये 1360 करोड़ रुपए में राज्य सरकार जैसे भी इस्तेमाल करना चाहे उसको कर सकती है। चलिए वो संज्ञान में डालेंगे। लेकिन मोदी जी की एक योजना है, उसमें यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब कवर हैं। उसमें आप सब पत्रकार तो छोड़ो, पत्रकार अखबारों के मालिक भी कवर हैं। इस देश में किसी की उम्र 18 साल से 70 साल यदि है, वो टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी हो या माननीय प्राइम मिनिस्टर हो या हम लोग मंत्री हों, मात्र 20 रुपये साल के बीमे में 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना में मिलता है नेचुरल कैलेमिटीज़ में। और ये प्राकृतिक आपदा की ही मौतें हैं जो 2 मौतें इस ज़िले में हुई। नंबर 2, जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक है वो 460 रुपये वाला बीमा करा सकते थे। यदि ऐसा करा लें तो देवी आपदा में 4 लाख और मिल जाते हैं। यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। आप 4 और 10 की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मौत का कोई मुआवजा नहीं होता अरबों में। फिर भी ये प्रधानमंत्री के जो दोनों बीमे हैं अगर लोग करा लें तो ये 4 लाख रुपए दाल रोटी चला सकती है। यह इससे बड़ी मजाक कुछ हो नहीं सकती है। जिसका खेत उसकी रेत, अगर रेत वो वाली हो जो आम दिनों में खनन के द्वारा रेत आती है, वो चांदी की तरह चमकने वाली रेत होती है, चाहे वो सतलज की हो, यमुना की हो, गंगा की हो, बेतवा की हो या झेलम की हो, वो बिल्डिंग मटेरियल में बिना किसी सफाई के सीधे सीधे लग जाती है। और बिल्डिंग मटेरियल में रेत की सबसे कीमत है। रेत एक एसेट, तो ये जो खेत में रेत कहा है ये किसानों के लिए लाइबिलिटी बना दिया, ये एसेट्स नहीं है। और मैं यहाँ की सरकार को कहना चाहूँगा कि किसानों के खेतों से वो रेत उठा लें और मार्केट रेट से 1 रुपये कम का पेमेंट कर दें। अगर वो इसको एसेट्स मानते हैं, अगर आम आदमी पार्टी सरकार इसको एसेट्स मानती है
तो मैं किसानों की तरफ से कहना चाहूँगा कि मेरे 1 एकड़ में 4 फीट की ज़मीन है, सरकार उठा ले और हमें उसका पेमेंट कर दे। तो जिसका खेत है उसकी रेत है, ये कोई एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटी है। और माफ़ करना, ये रेत नहीं है, ये गाद है, ये कीचड़ है, जिसमें ना तो बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होगा, ना ही रबी की फसल उसमें हो सकती है। तो ये जुमलेबाजी वो ना करें। पर्टिकुलर इस जगह का समाधान ये है कि एक 5-7 किलोमीटर का बांध बन जाए तो ये 4000 एकड़ ज़मीन हो सकती है और जनहानि, धनहानि से भी और पशु हानि से भी रोका जा सकता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैंने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि मनरेगा के कन्वर्जन से इस बांध को बनाया जा सकता है।